نئی ٹیکنالوجی اور قدرتی کھیتی کی طرف کسانوں کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے ریاست بھر میں منعقدہ ریتو نشتم کا 88واں ایپیسوڈ ایک شاندار اختتام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ کسانوں اور زرعی عہدیداروں نے ریاست میں 1600 ریتو ویدکوں کے ذریعے ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے براہ راست پروگرام میں حصہ لیا۔ وزیر توملا ناگیشور راؤ اس پروگرام میں مہمان خصوصی تھے اور زراعت کے سیکرٹری کے سریندر موہن IAS نے شرکت کی اور کسانوں اور عہدیداروں کی رہنمائی کی۔ اس تقریب میں کئی کسانوں نے اپنے کاشتکاری کے تجربات ریاست بھر میں کاشتکاری برادری کے ساتھ شیئر کیے اور سندیپ یادادری ضلع ویلی میلا گاؤں کے کسان سندیپ نے نامیاتی کاشتکاری اور اپنی اگائی ہوئی پیداوار کی خود مارکیٹنگ کی تکنیکی کی وضاحت کی۔ وہ خود انجینئرنگ گریجویٹ ہیں۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر۔ فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں۔ فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس۔ فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے گاندھی بھون میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آندھرا پردیش حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت قواعد کے خلاف سری سیلم پروجیکٹ میں بجلی پیدا کر رہی، جبکہ ضابطے کے مطابق جب سری سیلم ریزروائر میں پانی کی سطح 834 فٹ تک پہنچ جائے تو بجلی پیدا نہیں کی جانی چاہیے۔ وزیر نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے زرعی اور پینے کے پانی کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے آندھرا پردیش غیر قانونی طور پر پانی کا استعمال کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کئی بار توجہ دلانے کے باوجود آندھرا حکومت نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ جوپلی کرشنا راؤ نے اعلان کیا کہ مشترکہ محبوب نگر ضلع کے عوامی نمائندے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سری سیلم کے مقام پر ونتا وارپو احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد آندھرا حکومت نے بجلی پیداوار روک دی۔ گولکنڈہ ایکسائز پولیس نے منشیات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 کلو گانجا ضبط کر لیا اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایکسائز STF کے سپرنٹنڈنٹ ان جی ریڈی کے مطابق یہ کارروائی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔ پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران ایک شخص کے قبضے سے 4 کلو 1 گرام گانجا برآمد کیا، ساتھ ہی 2 موبائل فون اور ایک ہونڈا ایکٹیوا گاڑی بھی ضبط کی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ گولکنڈہ کے رہائشی محمد سیف گانجا خرید کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ وہ 1 کلو گانجا تقریباً 10,000 روپے میں خرید کر اسے چھوٹے پیکٹس میں قاضی گلی کے علاقے میں فروخت کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق مہاراشٹر کے ناگپور سے سلمان خان نامی شخص گانجا سپلائی کرتا تھا، جو فی الحال مفرور بتایا جا رہا۔ اس کیس میں ظفر پٹیل، شیخ عبدالمرتضیٰ، عبدالرحمان، سید عرفان، محمد محسن، جنید اور محمد بن علی کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ شہر کے علاقے اتاپور میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں پولیس نے برق رفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے جنسی زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اتاپور پولیس نے ایک ایسے شخص کو حراست میں لیا جس نے ایک گونگی اور جسمانی طور پر معذور خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی، چونکہ ملزم متاثرہ خاتون کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس لیے یہ واقعہ مزید تشویشناک قرار دیا جا رہا۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد عقیل ولد محمد جلیل عمر تقریباً 35 سال کے طور پر ہوئی، جو ایک پلاسٹک بوتل کمپنی میں مزدور کے طور پر کام کرتا ہے اور چندرن گٹا کے علاقے بارکس میں رہائش پذیر ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ حسن نگر اتاپور میں پیش آیا جب شکایت کنندہ اپنے گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر گئی تھی اور متاثرہ خاتون گھر میں اکیلی تھی۔ اسی دوران ملزم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر زبردستی خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔
संगारेड्डी जिले में तालीम और बच्चों की फलाह व बहबूद की खिदमात के निफाज के मुआयने के हिस्से के तौर पर जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने कोंडापुर मंडल के गंथापल्ली गांव का अचानक दौरा किया। उन्होंने गांव के प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर का मुआयना किया और वहां मौजूद सहूलियात और खिदमात के मियार का जामे मुआयना किया। कलेक्टर जिन्होंने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल का दौरा किया, वहां क्लासरूम, सफाई सुथराई, बैतुल खला, पीने के पानी की सहूलत, बिजली की फराहमी, स्कूल के तरफ और कंपाउंड वॉल की हालत का बगौर मुआयना किया। उन्होंने तलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील का बज़ात खुद मुआयना किया और तलबा से बात की और खाने के मियार के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया क्योंकि तलबा ने कहा कि खाना अच्छा था। उन्होंने असातिज़ा और अमले को मशवरा दिया कि वो तलबा को मेन्यू के मुताबिक मियारी खाना फराहम करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम व IT नारा लोकेश ने मंगलगिरी में TDP के मरकजी दफ्तर में अवामी दरबार के 86वें दिन का इनेकाद किया। मुख्तलिफ अजला के लोगों ने TDP कारकुनों से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में दरख्वास्तें पेश की। मगरबी गोदावरी जिले की तादीपल्ली गुड़म से ताल्लुक़ रखने वाले अरविंद ने वज़ीर नारा लोकेश से अपने वालिद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मुलाकात की, जो एक प्राइवेट अस्पताल में दिमागी बीमारी के लिए ज़र इलाज और तेजा ने दरख्वास्त की कि काकीनाडा जिले के समरला कोटा मंडल के आरचंद्रम पालेम गांव में एक बुनियादी सेहत मरकज कायम किया जाए। मगरबी बंगाल में होने वाले आइंदा असम्बली इंतखाब के लिए सियासी हलचल तेज हो गई। रियासत में सियासी पारा मुसलसल चढ़ रहा। इसी दौरान बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल चौथी फहरिस्त जारी कर दी। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक SC असम्बली हल्के से आशुतोष वर्मा को टिकट दिया गया, जबकि नाटाबाड़ी सीट से गिरजा शंकर राय इंतखाबी मैदान में होंगे। बागदा SC से सोमा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मागरा हाट मशरिक SC सीट से उत्तम कुमार बंग को मौका मिला है। फाल्टा सीट से दीबांशु पांडु और सोनारपुर शुमाल से दीबाशीष धर को उम्मीदवार बनाया गया। चौरंगी सीट से संतोष पाठक को इंतखाबी मैदान में उतारा गया। हावड़ा जनूब सीट से रंजन कुमार पाल और पंचला से श्यामल हाथी को टिकट मिला। इसके अलावा चंडीपुर से डॉक्टर पीयूष कांति दास, गारबेटा से प्रदीप लोढ़ा, मेमारी से मानू गुहा और बाराबनी सीट से अरिजीत राय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में भी एक अहम तब्दीली की है। मीनागढ़ी SC सीट से अब विलियम राय को उम्मीदवार बनाया गया है। जैन मजहब की 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर कांग्रेस क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अदम तशद्दुद, सच्चाई और हमदर्दी के पैगाम को उजागर करते हुए उन्हें आज के दौर के लिए निहायत अहम करार दिया। रहनुमाओं ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और भगवान महावीर की तालीमात को इंसानी फलाह का रास्ता बताया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम में कहा, महावीर जयंती के इस मुक़द्दस मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के उसूल अहिंसा, अदम तशद्दुद, अनेकता, कसरतियत और अपरेग्रा अदम मलकियत आज के चैलेंजेस से निमटने में गहरी रहनुमाई फराहम करते हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी आवाम को महावीर जयंती मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान महावीर की सच्चाई, अदम तशद्दुद, कुर्बानी और हमदर्दी की तालीमात पूरी दुनिया के लिए मशाल राह और इंसानियत की भलाई का रास्ता दिखाती हैं। ओडिशा में किसान लीडर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज जैसे ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें लोगों तक पहुंची, भारतीय किसान यूनियन के कारकुनों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर निकल आए। रियासत की राजधानी लखनऊ में किसानों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हजरतगंज थाने का घेराव किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद पूरी रियासत में गुस्से का माहौल देखने को मिला। जैसे ही टिकैत की गिरफ्तारी की खबर की तस्दीक हुई, किसान सड़कों पर निकल आए। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर बड़ी तादाद में किसान जमा होने लगे और जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान थाने के तरफ ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से लोग काफी देर तक फंसे रहे। किसानों ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन का घेराव किया और राकेश टिकैत की रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया। इस धरना और मुजाहरे को देखते हुए मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के मामले में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। 88 साला फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट तबस्सुम की अदालत में वर्चुअल तरीके से पेश हुए, जिन्होंने उन्हें CBI की चार्जशीट की बातें पढ़कर सुनाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मजीद कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं कि ये इल्जाम मनगढ़ंत हैं। अदालत ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि क्या उन्हें चार्जशीट की बातें जो बताई गई थी वो समझ आ गई थी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। जब साबिक वज़ीर आला से पूछा गया कि क्या वो इन इल्जामात को कबूल करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी भी इल्जाम का कसूरवार नहीं हूँ। इस मामले में बाकी मुल्जिमान जो खुद अदालत में मौजूद थे उन्होंने भी अपने ऊपर आयद तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया, सिवाय 2 लोगों के जिन्हें CBI ने माफ कर दिया और उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा 1 हफ्ते के अंदर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही जिसका हवाला बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे ने दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि ईरान के अंदर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हो चुकी है और पुरानी क़यादत अमली तौर पर ख़त्म हो गई। इनके मुताबिक अब एक नया ग्रोह सामने आया जिसके साथ बातचीत करना निस्बतन आसान साबित हो रहा। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में तब्दीली आ चुकी है और अब हम एक नई क़यादत से मामला कर रहे हैं जो अब तक ज़्यादा समझदार दिखाई दे रही। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर जोर दिया कि वो ज़्यादा देर होने से पहले किसी मुआहदे पर पहुँच जाएं। उनके इस बयान को ऐसे वक्त में देखा जा रहा जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और पस पर्दा मुज़ाकरात बैवक्त जारी हैं। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सदर ट्रंप को उम्मीद है कि 6 अप्रैल तक ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है। ये नई डेडलाइन ऐसे वक्त दी गई है जब अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की तवानाई के मराकज़ पर मुमकिन फ़िज़ाई हमलों को मौखर किया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।